as we did about notations, so notations is something which you can, definitely use in your exams. And I feel it's very easy also to use notations compared to equation editor that we'll be learning. But I've seen many students also using equation editor equally, and they use it very nicely in CM2, CS2. So you have to build that habit in CM1, CS1 specifically, and whatever at the end suits you. You can use a combination also of two, जैसे मैंने previous class में बताया था. ठीक है, so I'll just quickly share my screen. Okay. So these were the notations that we were talking about in the previous class. Now we learn about equation editor. So equation editor क्या होता है एकदम basic, जैसे मैंने आप लोग को last class insert करना सिखाया था symbols. यहाँ जाके you have symbols. We can go to more symbols, and then over here you can just select. ठीक है, maybe you can select Greek. Okay, wait a second. Greek and Coptic. Just give it a second, it will get loaded. I think. Hmm. तो ये ग्रीक एंड कॉप्टिक अब आप जस्ट सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपके सारे ग्रीक लेटर्स आ जाएंगे. ठीक है, and then you can select from the Greek letters that you have. Right? Understood? Or I don't think we need anything else apart from the Greek letters. I don't know why it's not getting loaded, but I think आप लोग के में हो गया होगा. ठीक है? It's taking some time to load. एंड मैंने और एक चीज सिखाया था कि आप लोग शॉर्टकट यूज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट क्यू, सो दैट द font itself changes to symbols and आपको अपने आप Greek letters मिल जाएंगे. Now, for example, if you insert, let's say suppose यहाँ से आप करेंसी भी ढूंढ सकते हो. सो इफ यू टाइप करेंसी तो आपको करेंसी भी मिल जाएंगे. As you can see, already recently used में I have currencies over here. For example, if I'm inserting this, तो इसको क्लिक करके मैंने ऐसे इंसर्ट करा. ठीक है, and when you insert this, so it comes in the recently used one.
ठीक है। एंड रिसेंटली यूज्ड वाले में आपको यूजुअली जो भी आपको रिसेंटली यूज करना है, यू कैन कीप पाउंड सिंबल, यू कैन कीप बेसिक वंस, तो वो यहाँ पे आपको मिल सकता है। ठीक है, this is about notations, but now let's start with equation editor. So in the insert tab itself, you have this equation. Okay. And you can see when you click on this drop down, you'll see a lot of equations over here. Although we don't use any equation directly, we make a new equation itself. So you can click on this insert new equation. When you click on this insert new equation, this particular box opens up. अब आप इसमें जो भी आपको इक्वेशन लिखना है, यू कैन सी, एज यू कैन सी, वंस दिस बॉक्स ओपन्स अप, देयर इज वन मोर tab which is opening, and this tab is of equation basically. So you have different you also have symbols जो आप इसमें insert कर सकते हो. You have fractions, e raised to the power whatever you want to write. You have integrals, you have summations and products, you have limits. So you also you have matrix that is commonly used in CS2. So ये जो है यहाँ से आप equations ले सकते हो, but generally again we don't take equations directly from here. We type our own equations. So for example, if I show you, जैसे मुझे मान लो x square लिखना है, तो नोटेशन के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? नोटेशन में आप ऐसे लिखोगे x कैरेट सिंबल 2, जैसे मैंने लास्ट क्लास दिखाया था, या फिर यू कैन यूज अ सुपरस्क्रिप्ट. उसका शॉर्टकट इज कंट्रोल शिफ्ट प्लस. ठीक है, टू गेट द सुपरस्क्रिप्ट. बट अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इंस्टेड इज, मान लो अगर मुझे, मैंने ऐसे स्लैश दिया, ठीक है, एंड देन यू कैन राइट एक्स square and then you press space. The moment you press space, you see it gets converted into x square. ठीक है, and the moment you press a space, it gets converted into automatically. The two goes as a superscript. This only happens if you are within the equation editor. You don't have to now, ऐसा कुछ नहीं कि वो superscript में चला गया. Just press space. आपको और भी कुछ लिखना है, मान लो raise to the power 5, तो वो अपने आप y to the power 5 हो जाएगा. ठीक है, सो दिस ओनली कैन हैपन विद एन इक्वेशन एडिटर. अगर मैं बाहर कुछ लिखूंगी, मान लो मैं एक्स स्क्वायर कर रही हूँ, तो ये एक्स स्क्वायर नहीं होगा. ओनली दिस, ओनली यहाँ पे ये वर्क करेगा बिकॉज दिस इज विद इन द इक्वेशन एडिटर. नाउ ऑब्वियसली अब आप बोलोगे ये मिडिल अलाइंड है, सो यू कैन इंटेंड इट टू द लेफ्ट. यू जस्ट हैव टू क्लिक ओवर हियर. ठीक है, एंड आपको जस्टिफिकेशन को लेफ्ट करना है, सो ये अपने आप लेफ्ट अलाइन हो जाएगा. ठीक है, एंड द शॉर्टकट टू गेट द इक्वेशन एडिटर इज ऑल्ट इक्वल्स टू. जैसे ही आप ऑल्ट इक्वल्स टू प्रेस करोगे, यू गेट द equation editor and automatically this particular tab opens up. Otherwise you can go to the insert tab, you can go to the equation, just click on equation and equation gets added, or you have the shortcut alt equals to. Alt equals to is the shortcut. अंडरस्टूड. नाउ यहाँ हम लोग मल्टीपल चीजें यूज कर सकते हैं. देखो ये सारे मेरे इक्वेशन एडिटर के फॉर्मूलाज हैं जो आप उसके अंदर टाइप कर सकते हो. अगर आपको x बेस 2 लिखना है, तो x अंडरस्कोर 2 स्पेस, स्पेस प्रेस करते इट गेट्स चेंज्ड टू दैट. प्लस माइनस करना है, सो सिंपली आपको कुछ नहीं करना होगा, प्लस माइनस लिख के स्पेस करोगे तो अपने आप ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें. ठीक है, आई नीड दिस फॉर दिस. ठीक है, यहाँ मैं समझाती हूँ ये कैसे हुआ. सो जनरली वी यूज दिस बैकवर्ड स्लैश. Generally, we use this backward slash for writing any equation within the equation editor. So plus minus, देखो अपने आप it changes. Try it on plus minus space. तो अपने आप देखना ये फॉरवर्ड जो मैंने बैकवर्ड स्लैश दिया वो अपने आप हट गया and you get plus minus. Just try it on you guys and just put it in the chat box if you guys are able to do it.
ठीक है. So use a backward slash within equation editor to get all the notations. Okay, great. So ऐसे करके मैंने सारे लिस्ट डाउन कर दिए ऑलरेडी. आपको ऐसा एरो देना है. सो यू जस्ट टाइप लेफ्ट एरो, राइट एरो. ऐसे किया, लेफ्ट एरो, गिव अ स्पेस एंड यू हैव अ लेफ्ट एरो. ठीक है. सबसेट के लिए यू जस्ट यूज द वर्ड सबसेट. दिस इज बिलोंग्स टू. हम लोग जब सेट थ्योरी करते हैं या फिर हम लोग यूजली वी राइट एक्स बिलोंग्स टू यू हैव अ वेक्टर. तो उसमें इंटीग्रेशन, अगेन यू हैव इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन के लिए वी यूज दिस. आई विल शो यू टू वेज यू कैन यूज इट, दिस यूजिंग दिस एज वेल. एंड मैंने आप लोग को लास्ट क्लास जो सम एंड प्रोडक्ट सिखाया था कि यूजिंग नोटेशंस विदाउट इक्वेशन एडिटर भी हम लोग कैसे कर सकते हैं. सो इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 2 to 5 मान लो, एंड उसके अंदर में कुछ आपको लिखना है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे. बैकवर्ड स्लैश अगेन, INT, डोंट गिव एनी स्पेसेस, नथिंग. इसी में आपको साथ में कुछ भी स्पेस नहीं देना है. अंडरस्कोर 2, don't give anything, don't give any spaces, caret symbol 5. Now you give a space and see you have integrating 2 to 5. I'll again repeat. INT, underscore, underscore is for the subscript and caret symbol is for the superscript. So 2 to 5 स्पेस दिया एंड अपने आप क्या आ गया. अब इसके अंदर मान लो यू वांट टू राइट x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, dx, right? This is your equation. Now what if I don't want to use equation editor but I want to write this expression only? तो ये कैसे हम लिखेंगे, ये हम कैसे लिखेंगे, वेट आई विल शो यू. ठीक है, मुझे यही एक्सप्रेशन लिखना है but without using equation editor. I'm not comfortable using it. I want to use a basic notation जो हम last class करे थे. INT लिखा इंटीग्रेशन के लिए. Within the brackets you give the limit. So 2 to 5 give underscore and then आपको जो भी आपका इक्वेशन है which is x square plus 4x dx. Now can you like tell me कि इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस है या फिर ये चीज नहीं समझ में आ रहा वो ज्यादा. हाँ, ऑब्वियसली व्हेन यू लुक इट फॉर द फर्स्ट टाइम ये ज्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा, बट दिस इज नॉट बैड. यहाँ पे आपको इक्वेशन एडिटर यूज नहीं करना पड़ा. सो इफ यू आर फाइन विद दिस यू कैन यूज दिस एज वेल. देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको यही अप्रोच फॉलो करना है. लाइक आई शो यू, आई हैव मेड अ टेबल. सी इसमें, हाँ, जैसे देखो ये वाला इक्वेशन एडिटर पे लिखा है मैंने एंड ये मैंने विदाउट इक्वेशन एडिटर लिखा है. सो कितने अच्छे से इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड देन ब्रैकेट में x e टू द पावर x टू द पावर 5 minus 1 dx. सो इट्स वेरी, आप यहाँ पे अगर आप चाहते हो आप एक मल्टीप्लीकेशन साइन दे सकते हो. सो हु इज सेइंग दैट दिस इज नॉट अंडरस्टैंडेबल? इट इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल, राइट? एंड मान लो अगर मुझे यहाँ पे इसको सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाना था, सो यू कैन यूज अ शॉर्टकट कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5. बस हो गया. ये भी कर सकते हो इफ यू वांट टू. एंड देन अगेन कंट्रोल शिफ्ट प्लस टू गेट बैक. सिंपल, अंडरस्टूड? तो दोनों तरीके से आप इंटीग्रेशन यूज कर सकते हो. ये इक्वेशन एडिटर में कैसे करेंगे? लेट्स सपोज अगेन ऑल्ट इक्वल्स टू, सो मान लो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाना है. सो देखो ये भी मैंने यहाँ पे डाल रखा है. इन्फिनिटी के लिए, इन्फिनिटी सिंबल के लिए द शॉर्टकट, द इक्वेशन दैट वी हैव इज INF ty. INF ty. सो माइनस इन्फिनिटी है ना, तो पहले माइनस साइन दोगे. अगेन यू गिव दिस स्लैश बिकॉज यू नीड infinity symbol
INFTY and then you give this, तो देखो अपने आप यहाँ माइनस इंफिनिटी आ गया. This I've carried symbol for the upper limit. INFTY. दो बार स्पेस दिया and then you have this. ठीक है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा. ऑब्वियसली इट विल नॉट कम सो इजीली. इवन ऑनेस्टली आई हैव नेवर यूज्ड इक्वेशन एडिटर सो मच. maybe a little bit I used for my SP6 exam, but वो भी मैंने बहुत कम किया था. तो यहाँ पे basically what I'm trying to say is I have not been practicing a lot. तो अगर मैं कर सकती हूँ इतना easily, आप अगर 2 दिन भी प्रैक्टिस करोगे you will be very good at it, very very good at it. ठीक है, तो ऐसा कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम नहीं कर सकते. एंड देन यू राइट द इक्वेशन इन दिस. सो द इक्वेशन वाज x मल्टीप्लाइड बाय, सो एक्सपोनेंशियल है ना. अब एक्सपोनेंशियल के लिए आपको कुछ चाहिए, तो देखो यहाँ पे ना काफी सारे सिंबल्स ऑलरेडी हैं अगर आप देखोगे. एंड सिंबल्स के ऊपर आप क्लिक करो, मतलब जस्ट यू टेक योर कर्सर ओवर हियर, तो देखो ब्रैकेट में आपको वो फॉर्मूला मिल रहा है जैसे इसमें डिवीजन है. ठीक है, हमने इंफिनिटी यूज करा. इंफिनिटी शुड बी हियर. इफ इट्स नॉट, इंफिनिटी इज नॉट हियर, नो प्रॉब्लम. देखो ये सारे आपके ग्रीक लेटर्स भी हैं, अल्फा बीटा. ठीक है, सारी ग्रीक लेटर्स हैं, स्क्वायर रूट है. तो ये सब आपको, अब आप हाँ इंफिनिटी, तब जब इस पे लेके जाओगे तो देखो आपको ब्रैकेट में अपने आप को एक जो फॉर्मूला है वो अपने आप दिख रहा है. ठीक है, एंड ई रेस्ड टू पावर एनीथिंग यू वांट टू यूज, तो यहाँ पे भी है अगर आपको डायरेक्टली यूज करना है. बट आई डोंट थिंक आपको डायरेक्टली यूज करने का कभी जरूरत पड़ेगा. ठीक है, आई डोंट थिंक यू नीड दैट. ठीक है, सो यहाँ पे मान लो मैंने लिखा अगेन exponential and within bracket what was that equation that we were, x to the power 5 minus 1. ठीक है, आई थिंक ये e ही होना चाहिए, multiplied by e raised to the power. Let's see if this works. Yes. ठीक है, so it's not difficult. ये multiplication आप हटा भी सकते हो and then you can just write dx. It's not difficult. Any questions you all have, you can put in the chat box or just raise your hands. Plus minus is simply just typing बैकवर्ड स्लैश प्लस माइनस, अपने आप आ जाएगा. बैकवर्ड स्लैश ये वाला देखो. ठीक है, और द शॉर्टकट इज pm इनके अकॉर्डिंग, ये भी कर सकते हो. यस मंथन. Ma'am, I have a doubt. The doubt is that while entering the equation, there is a box that is forming. So does that mean I'm doing something wrong? दिस बॉक्स, No, 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 no. Dotted box. नहीं 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 नहीं, वो रहेगा. देखो मेरे इस पे भी है, यहाँ पे देखो, यहाँ दिखा देती हूँ. ये बॉक्सेस ये वाले, Yes, 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 ma'am. Yes, ma'am. These हाँ ones. ये रहेगा ये रहेगा ये रहेगा. इट्स फाइन. Okay, okay, all देखो right. मेरे वाले से आपका थोड़ा अलग दिख सकता है बिकॉज आई एम यूजिंग ऑफिस 365. आप कोई और वर्जन यूज करते हो तो थोड़ा अलग दिखता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू शुड गेट द आंसर, इट शुड नॉट हैम्पर योर आंसर. Can we use combination? Yes, I've mentioned this in the previous class also. आप देखो प्रिंस, there is no hard, मतलब both the institutes are not telling you कि आपको यही करना है यही करना है. आप अपने मन से जो, but जैसे मैंने क्या बोला था लास्ट क्लास, the examiner should understand what you have done. If the examiner is able to understand, you're good to go. So even if I'm writing it this way or I'm writing it, see this way, which is the notation way.
बोथ द वेज आर फाइन। ऐसा नहीं होगा कि इसके लिए आई डिडक्ट मार्क्स या इसके लिए आई डिडक्ट मार्क्स, नहीं, बोथ आर फाइन, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी, ठीक है, आई शो यू। अब देखो, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीजें हैं, मैं एक एक बार दिखा रही हूँ। दिस वीडियो विल गेट अपलोडेड एंड ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ वीडियोज दैट यू हैव टू रेफर, जो मैं आप लोग को बता दूंगी। सो अगर आपका कुछ मिस हो रहा है, यू कैन प्लीज रेफर टू द वीडियो, ठीक है। मैं बहुत बार क्योंकि नहीं रिपीट कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली। सो इट्स वेरी इजी। आपको ऑल्ट इक्वल्स टू, आप इक्वेशन एडिटर में आ गए एंड देन यू राइट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी के लिए, अच्छा अंडरस्कोर क्यों दिया, क्योंकि लोअर लिमिट है, उसके लिए व्हाट यू नीड, अगेन माइनस इन्फिनिटी के लिए, अच्छा एक सेकेंड, हम इसके बाहर ही आ गए, आई डोंट नो व्हाई दिस इज फेसिंग अ प्रॉब्लम। माइनस माइनस दिया इन्फिनिटी के लिए, आई एन एफ टी वाई, डोंट गिव स्पेस नथिंग, बिकॉज हमें सुपरस्क्रिप्ट, हमें अपर लिमिट लिखना है। अपर लिमिट के लिए यू हैव कैरेट सिंबल, अगेन आई एन एफ टी वाई, एंड यू गिव अ स्पेस, अगेन अ स्पेस, एंड आपका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो जाएगा। एंड देन अंदर में जो आपको इक्वेशन लिखना है आप लिख सकते हो। अंडरस्टूड। तो थोड़ा ये चीज क्या है, आपको टाइम लगेगा ग्रास्प करने में। अब यही चीज आप 3 बार प्रैक्टिस करोगे, यू विल बी वेरी फास्ट विद दैट, राइट। मैम, द प्रॉब्लम आई फेस विद टाइपिंग is that there are too many brackets in long equations, and while rechecking the answer it becomes, see Vansh, that only you can improve with practice. ये सब आप कुछ भी बोल लो कि ऐसा है वैसा है, ये हम कुछ नहीं कर सकते इस चीज का। यू कैन नॉट काउंट योर डिफिकल्टीज, यू कैन नॉट काउंट योर प्रॉब्लम्स, यू हैव टू काउंट द सॉल्यूशंस, राइट। बिकॉज आपको सारे पेपर्स, सी एम सी एस, एटलीस्ट इन दीज 4 पेपर्स यू नीड हार्डकोर मैथमेटिकल टाइपिंग। ऐसा कोई नहीं, CM2 में भी है, CS2 में भी है, CM एंड CS1 में भी है। तो आप कुछ, देर इज नो अदर ऑप्शन। वो आप जितना प्रैक्टिस करोगे, इट विल, यू विल बिकम फास्टर, एंड आपको, मतलब यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट, हम जो बोलते हैं। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जस्ट लुकिंग एट द स्क्रीन एंड टाइपिंग, CM2 CS2 स्टूडेंट्स जस्ट टाइपिंग, नॉट इवन लुकिंग एट द कीबोर्ड, स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, मतलब इतना फास्ट। मैं तो नहीं कर सकती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज आई हैव नॉट यूज्ड इक्वेशनेटर, बट आई कैन टाइप रियली फास्ट। प्लेन टाइपिंग आप बोलोगे मैं बहुत फास्ट करूंगी, बट अगेन इक्वेशंस लिखने बोलोगे तो मैं स्लो जाती हूँ उधर, बिकॉज मैंने नहीं किया ना प्रैक्टिस, वो तो आप लोगों को करना पड़ेगा सम्स के साथ। अभी से एवरी डे आप 2 आवर्स प्रैक्टिस करो, इंक्रीज दैट टू 3-4 आवर्स, एंड फिर देखो, डोंट इवन यूज पेन एंड पेपर। अपने में कर सकते हैं तन्वी। फॉर एग्जाम्पल मेरे को यही इक्वेशन यूज करना है इन द सेकेंड लाइन, सो कंट्रोल सी करा, कंट्रोल वी, ठीक है। तो आप ये अपने में कर सकते हो, एंड देन मे बी आपको इसके अंदर का कुछ चेंज करना है, तो आप अपने में कर सकते हो, यू कैन डू दैट। अपने डॉक्यूमेंट में कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, वो तो करना ही पड़ेगा, और करोगे तो बेटर है, आप फटाफट इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। इंटीग्रेशन है dy dx, सो अगर आपको मान लो कुछ भी डिफरेंशिएशन वाला दिखाना है, अगेन विद इन, कुछ नहीं करना आपको, dy आपको डोंट डोंट इवन नीड दैट बैकवर्ड स्लैश, dy बाई dx स्पेस किया, and then maybe within the bracket you are writing the equation. Let me get a good equation for you all. मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स डाल रखे हैं थोड़ा इसी डॉक्यूमेंट में, जैसे मान लो ये है, ठीक है, और भी है क्या, dy dx का नहीं, मान लो ये है। अब यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन है, वो भी मैं दिखा दूंगी। सो dy dx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस e टू दी पावर x प्लस 4 है ना, सो e टू दी पावर, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि पूरा चीज जाएगा, x प्लस 4, एंड देन यू गिव अ स्पेस। ब्रैकेट्स देखो अपने आप हट गए, मैंने x प्लस 4 में, आई जस्ट शो यू अगेन, e टू दी पावर
x+4 पूरा है ना, सुपरस्क्रिप्ट e टू द पावर में, रेज टू द पावर में, तो ब्रैकेट डाला, स्पेस किया, तो अपने आप वो ब्रैकेट हट गया, द एंटायर थिंग गोज अप। ठीक है। अब यही मुझे पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर दिखाना है, लेट्स सपोज, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए वी यूज द वर्ड पार्शियल। देखो यहाँ पे भी मैंने लिख रखा है, वी यूज द वर्ड पार्शियल। ठीक है। सो पार्शियल वाई, डी लिखने का जरूरत नहीं है, पार्शियल वाई। वापस से दिखाती हूँ, पार्शियल जैसे ही करते हो ना तो डेल का सिंबल आता है। इट्स हियर और नॉट? देखो ये डेल वाला सिंबल, डेल्टा है ये एक्चुअली, बट आप पार्शियल लिखोगे तो डेल आएगा। ठीक है, ये वाला नहीं, हाँ ये वाला करेक्ट। ठीक है, डेल का सिंबल आएगा। डेल्टा भी यूज करते हैं, सेम थिंग ओनली, बट ठीक है। स्पेस देके वाई लिख सकते हो या डायरेक्टली भी, स्पेस देने से आई थिंक बेटर रहेगा बिकॉज वो चेंज हो जाएगा फिर। देखो डी में चेंज हो गया वाई, डिविजन सिंबल, अगेन नीचे जाना है ना आपको, तो ये देना होगा क्योंकि आपको पार्शियल चाहिए। स्पेस देके एक्स, अगेन एक स्पेस दोगे तो ये dy by dx हो जाएगा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड स्पेस कब देना है कब नहीं देना है। अगेन आई रिपीट, जस्ट सी हाउ एम आई डूइंग। पार्शियल लिखा, इसके बाद क्यों स्पेस देंगे, क्योंकि मुझे वो डेल सिंबल चाहिए, y, देन डिविजन क्योंकि मुझे नीचे आना है, एंड अगेन मुझे पार्शियल लिखना है, आई गिव अ स्पेस, इट अगेन चेंजेस टू द डेल सिंबल, एंड देन यू गिव x। अब ये नीचे नहीं जा रहा, स्पेस प्रेस करोगे तभी नीचे जाएगा, एंड देन अगेन इक्वल्स टू आपको जो भी लिखना है। ठीक है, सो दिस वन पार्शियल हो गया। अगेन x बार, तो ये हो गया x डबल बार, यहाँ पे एक्चुअली कैपिटल बी है, ये स्मॉल बी है, ये कैपिटल बी है, तो x बार सी एस में काफी यूज होता है। तो आपको ठीक है। अब ये देखो, ये जो बार है ये बाहर है x के, तो एक बार और स्पेस दोगे तो अपने आप x के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, x hat is similarly infinity proportional therefore because, ये सारा देख लो, therefore लिखोगे तो therefore सिंबल आ जाएगा। I'll come to CS1 related equations at the end so that those who want to leave can leave. अब ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। सो दिस वाज द इक्वेशन। ठीक है, ये तो मैं हटा ही देती हूँ, दिस इज नॉट नीडेड। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज यूजिंग इक्वेशन एडिटर। स्क्वायर रूट कैसे आया, यूजिंग द फंक्शन स्क्वायर रूट। सो देखो s इक्वल्स टू स्क्वायर रूट है ना, तो एस क्यू आर टी है, आप यहाँ चेक कर सकते हो, ये देखो ये वाला एस क्यू आर टी, एंड देन यू गिव अ ब्रैकेट, आई एम नॉट गिविंग स्पेस, वो अपने आप आ जाएगा, ब्रैकेट दे दोगे। ब्रैकेट क्यों दिया हमने, बिकॉज ये पूरा चीज स्क्वायर रूट के अंदर है, ब्रैकेट नहीं दोगे तो खाली फर्स्ट वाला चीज लेगा वो स्क्वायर रूट के अंदर। यू हैव एक्स स्क्वायर, स्पेस दिया, प्लस अल्फा बाय एक्स है, तो प्लस अल्फा के लिए अगेन जस्ट टाइप अल्फा बैकवर्ड स्लैश देके, बाय एक्स स्पेस प्लस, नहीं माइनस बीटा है, तो माइनस बीटा ब्रैकेट स्पेस, देखो सब इसके अंदर आ गया, स्पेस दिया मैंने दोबारा, फिर इसके अंदर आ गया। सो आप खुद से टाइप करो, जब तक खुद से आप देख के कितना करोगे, आप मेरा देखते रहोगे ऐसे तो आप लूप बन जाएगा, आप वीडियो देखते ही चले जाओगे। जब तक आप खुद से नहीं ट्राई करोगे नहीं होगा। यू डोंट हैव टू लुक एट माई वीडियो अगेन एंड अगेन, बस एक बार देखा, समझ में आया, ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे खुद से सीखोगे अच्छा कब स्पेस नहीं देने। देर इज नो रूल, आई कैन नॉट, यू आर नॉट इन क्लास 2 क्लास 1 वेर आई टीच यू अच्छा अभी स्पेस दो, अभी मत दो, आप नहीं हो। देर सो मच ऑफ स्पून फीडिंग, गेट आउट ऑफ दिस हैबिट। तो मैंने, आपने एक बार देख लिया, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू, एंड यू हैव दिस डॉक्यूमेंट, लाइक
आई थिंक दिस इज द बेस्ट डॉक्यूमेंट यू कैन हैव. बस. और ये ही नोटेशंस के फॉर्म में. अगर मान लो किसी को इक्वेशन एडिटर नहीं यूज करना है, तो एस स्क्वायर रूट ऑफ दिस. अब कौन बोलेगा कि ये नहीं समझ आ रहा? जस्ट बिकॉज दिस इज लुकिंग गुड डज नॉट मीन दिस इज बेटर. मेरे से कोई पूछेगा, आई वुड बी यूजिंग कीबोर्ड नोटेशंस, बिकॉज आई एम मोर, क्या बोलते हैं, आई एम मोर, आई थिंक कि ये ज्यादा इजियर है एग्जाम में. बिकॉज क्या होता है, इक्वेशन एडिटर आपने किया, आप इसका इंडेंटेशन चेंज कर सकते हो. देर इज अ वे यू कैन change the indentation somewhere in the settings. मैं बता दूंगी आप लोग को. Somewhere in the settings we can go and change the indentation. मुझे exactly याद नहीं है अभी. Maybe you all can have a Google search or a chat GPT search. कि इसका permanently indentation left कैसे करते हैं. हाँ एक तरीका, बट मुझे अभी करंटली याद नहीं आ रहा है. तो आप वो जाके सर्च कर सकते हो, हाउ टू कीप द इक्वेशन एडिटर इंडेंटेड टू द लेफ्ट ऑलवेज. तो आपको कहीं ना कहीं तो मिल जाएगा. नॉट वेरी मच श्योर अबाउट इट कि कहाँ था. आई थिंक मैम वो जो कन्वर्जन्स में वो एरो एंड वो बना है, आई थिंक उसमें. ये वाला, ये वाला हाँ. जस्टिफिकेशन लेफ्ट कर दो. ठीक है, इस पे क्लिक करा. हाँ राइट, थैंक यू. इस पे आपने क्लिक किया, जिसने भी बताया थैंक यू. जस्टिफिकेशन को आपने लेफ्ट किया. ठीक है, एंड देन परमानेंटली ऑल द इंडेंटेशन विल मूव टू द लेफ्ट. ठीक है, बट अगेन अगर मेरे से कोई पूछे, क्योंकि अब देखो नेक्स्ट लाइन में जा रहे हो, वापस इक्वेशन एडिटर खोल रहे हो, वापस यू डू इट. मे बी यू आर कॉपी पेस्टिंग दिस, कॉपी एंड देन यू पेस्ट इट हियर, एंड देन वट एवर चेंजेस यू वांट टू डू. तो ये सब हम कर सकते हैं, बट अगेन आपको क्या कन्वीनियंट लग रहा है. डोंट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम थिंकिंग कि मुझे क्या करना है. जो भी आपको कन्वीनियंट लगे. डोंट टॉक टू योर फ्रेंड्स, अरे तुम्हें क्या ठीक लग रहा है, अरे तुम्हें क्या ठीक लग रहा है, तुम कौन सा अप्रोच फॉलो कर रहे हो. नॉट नीडेड. आपको जो अप्रोच ठीक लग रहा है, 2 बार 3 बार करो, सम्स बनाओ, एंड वट एवर यू फील लाइक यू कैन यूज ऑल्सो मिक्स ऑफ इट. कभी वो कभी ये, कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. ठीक है, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. सो ये हो गया आपका स्क्वायर रूट वाला. यू कैन सिमिलरली हैव दिस क्यूब रूट में सीबीआरटी होता है. देखो इक्वेशन के एडिटर के अंदर जाते हो, सीबीआरटी. ठीक है, जैसे एसक्यूआरटी लिखा वैसे सीबीआरटी. देन दिस वी हैव डन, दिस वी हैव डन. नाउ समेशन एंड ऑल, ये मैं दिखा देती हूँ कैसे यूज करते हैं. यहाँ पे अगर आप देखो समेशन ऑलरेडी है. ठीक है, बट लिखा, अंडरस्कोर दिया, क्या था इसका शॉर्टकट, सम. ठीक है, अंडरस्कोर दिया क्या है, आई गोज फ्रॉम 1 to 10 है ना. तो आई इक्वल्स टू 10 टू दी पावर. आई थिंक मेरा आई वो लिया नहीं, इसीलिए वैसा आ गया. नहीं एक सेकेंड रुको, फिर से करती हूँ. सम अंडरस्कोर आई इक्वल्स टू 1 to the power 10. स्पेस दिया, नहीं ये पूरा ब्रैकेट में जाएगा. माय बैड, माय बैड. पूरा ब्रैकेट में जाएगा. ब्रैकेट में क्यों जाएगा, ये पूरा चीज आई इक्वल्स टू 1.
क्योंकि वो पूरा नीचे जा रहा है ना, यही गड़बड़ है। ठीक है, अब देखो ये चीज मैं भी बीच में भूल गई, वेरी कॉमन प्रैक्टिस से ही होगा ना ये तो। आई इक्वल्स टू 1, अब मैंने कैरेट दिया 10, अब देखो आ गया, बिकॉज द एंटायर थिंग गोज नीचे। पहले मैं क्या करी थी, खाली आई इक्वल्स टू करके 1 करी थी, तो अपने आप कुछ भी नीचे नहीं जा रहा था। ठीक है, अब इसके अंदर आपको जो लिखना है xi+5, तो xi प्लस 5 हो गया। अब यही चीज मैं अगर नोटेशंस के फॉर्म में लिखूं तो कैसे होगा, सम I goes from 1 to 10, within brackets you can use any brackets, doesn't matter, xi plus 5, that's it। अब देखो ये जो लाइंस आ रहे हैं, ये मैंने दिखाया था लास्ट क्लास, फाइल मोर ऑप्शंस, आई थिंक उस दिन सेव नहीं हुआ होगा, प्रूफिंग में जाएंगे, स्क्रॉल डाउन एंड यू नीड टू हाइड स्पेलिंग एरर, ग्रामर एरर फॉर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। आपको सारे वर्ड फाइल्स के लिए करना है तो आप यहाँ से हटा दो, बट मैं सबके लिए नहीं हटा रही हूँ, नॉट नीडेड फॉर मी। तो आपके लिए भी इट्स नॉट नीडेड, जिस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो उसी में हटाओ। सो व्हेन यू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग योर एग्जाम, दिस इज द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, गो टू प्रूफिंग एंड जस्ट रिमूव इट। या एग्जाम वाले दिन इन जनरल आप इसको हटा के रख सकते हो सबको। ठीक है, ये सबको अनटिक करके रख सकते हो, अनटिक कर दोगे तो अपने आप ही कुछ नहीं, आपका ये रेड लाइंस नहीं दिखेगा, तो नाउ इट लुक्स बेटर। वो रेड एंड ग्रीन लाइंस जो आते हैं वो बहुत गंदे लगते हैं। तो अब दोनों में से अब आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हो, यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। अब देखो ये क्या, एक मैं एक और चीज दिखाती हूँ यहाँ पे, ये जैसे समेशन आई और 10 ये जो है, ये यहाँ पे साइड में आ गया, मुझे नीचे ऊपर चाहिए। सो इन द कन्वर्जन सेक्शन ओनली, go to this button, click on this button, and you can select this integrals में place integral limits centered above and below instead of side। देख रहे हो, ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ गया, पहले ये साइड में आ रहा था 2 and 5, अब ये 2 and 5 इसके ऊपर आने लग गया है। यू कैन डू इट फॉर समेशन एज वेल, भाई मैं देख रही हूँ कि समेशन के लिए कहाँ होता है। कैन एनीवन टेल मी कहाँ होता है समेशन के लिए, कि हम ऊपर नीचे कैसे जा सकते हैं। वेट, आप ये वाला चीज इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से, एंड देन यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो बॉक्सेस पे क्लिक करके। तो यहाँ मैंने कर दिया आई इक्वल्स टू 1, यहाँ मैंने लिख दिया 10, एंड यहाँ मैंने लिख दिया xi+5, बट आई थिंक ये बेटर है ना।
मैं इसका सेटिंग देख के बताऊंगी कि कैसे ये ऊपर नीचे रह सकता है। ठीक है, बोलो, एनी डाउट टिल योर? सेम वी कैन डू फॉर प्रोडक्ट। सो देख लो, प्रोडक्ट का अगर आता है, यहाँ आपको नहीं मिलेगा प्रोडक्ट, इसमें मिलेगा। इस पे जाओगे तो यहाँ आपको प्रोडक्ट मिलेगा, एंड आई थिंक इट इज POR। ठीक है, अंडरस्कोर k equals to 1 and 100, so k equals to 1, स्पेस दिया, फिर से प्रोडक्ट PROD स्पेस अंडरस्कोर यू हैव I equals to 0 ब्रैकेट में, क्योंकि पूरा चीज नीचे जाना है, टू द पावर 99 हो गया। एंड देन अंदर में KI माइनस I, KI माइनस I। सेम अगर मुझे देखो, ये अपने आप इसमें चेंज हो रहा है। आई थिंक कंट्रोल Z करने से नहीं चेंज होगा, आई थिंक सो, आई एम नॉट वेरी श्योर। हाँ, कंट्रोल Z करने से नहीं चेंज हुआ, इट गॉट चेंज ना, देन आई प्रेस्ड कंट्रोल Z, तो ये फिर से ऐसे आ गया। इट्स अप टू यू, आपको ऐसे चाहिए। अगर आप ऐसे लिखोगे तो क्या है, स्पेस कम लेगा आपके वर्ड डॉक में, ऐसा कुछ है नहीं। तो ऐसे भी कर सकते हो एंड ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऊपर नीचे चाहिए। ठीक है, देखो फिर से आ गया। व्हाई इज हैपनिंग, आई डोंट नो, ये मुझे एक बार चेक करना होगा। बट प्रोडक्ट k equals to 1 to 100, and then you again have a product, so you can use a multiplication. Product I equals to 0 to 99, and then within bracket क्या चीज का आपको प्रोडक्ट निकालना है, KI माइनस I। देखो I कैपिटलाइज हो जाता है ना, कंट्रोल Z कर दो। ठीक है, देर इज एन ऑप्शन टू रिमूव दिस ऑल्सो, कि वो अपने आप कैपिटलाइज नहीं हो। अगेन आप मोर ऑप्शंस कितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने इसको। आई थिंक लैंग्वेज में आएगा या प्रूफिंग में ही आएगा कि आपको कैपिटलाइज नहीं करना है अपने आप। चेंज हाउ वर्ड करेक्ट्स एंड फॉर्मेट्स टेक्स्ट एज यू टाइप, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो प्रूफिंग में जाके, इस पे जाके you can remove this. Correct two initial capitals. Capitalize the first letter अगर आपको नहीं करना है। Capitalize the first letter of the table अगर आप टेबल बना रहे हो उसके अंदर। अगर आपको ये सारे जो ऑप्शंस है ये हम लोग नहीं यूज कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल, तो नॉट डिस्कसिंग दिस। देखो करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, अगर कुछ ऐसा आप TWO लिखते हो तो वो अपने आप TWO हो जाता है, राइट। करेक्ट एक्सीडेंट यूसेज ऑफ कैप्स लॉक, ऐसा कुछ आ गया, तो ये सारे आप हटा सकते हो इफ यू वांट टू। ठीक है, राइट। बहुत सारी चीजें, इतना नहीं एक्सप्लोर करना हमें, नॉट नीडेड। क्लियर, आई डोंट थिंक इन दोनों में कुछ भी डिफिकल्ट है। दोनों में से जो आपको प्रेफर्ड हो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे k इक्वल्स टू होगा, बिकॉज समझ में कैसे आएगा फिर।
प्रोपोर्शनल टू prop 2, ऊपर मैंने दिखाया था म्यू, दिखा देती हूँ फिर से। ऐसे करोगे तो म्यू prop 2 प्रोपोर्शनल का सिंबल आ गया 1/α। ठीक है, इक्वेशन में म्यू इक्वल्स टू 1/λ। सिंपल। नाउ आई फील आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज। एक मुझे दिखाना है एक्सेल से वर्ड का, वो मैं नेक्स्ट क्लास दिखाऊंगी। बट अभी आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। नाउ कंसिडरिंग, अच्छा कोई डाउट है आपको तब तक? In exam, yes, Jasmine, again and again I've said you can. Ultimately, we have to type the same thing in equation editor that will, correct. How we can left align equation, Shrikant, you have to, अभी जैसे हमने बताया इस पे क्लिक करोगे तो जस्टिफिकेशन को लेफ्ट कर दो, ठीक है। दिस नोटेशन डॉक्यूमेंट मैंने लास्ट क्लास नहीं अपलोड कराया था बिकॉज देयर वर सम चेंजेस आई हैड टू मेक। maximum I'll send it to the team today and they'll upload it today only. तो आज में जाएगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगी कुछ चीज, ठीक है। ओके, so now let's move to quickly take, I'll just take 5 minutes. अच्छा, तो ये सब फाइ, अब देखो ये एक बार मैं दिखा देती हूँ। थीटा, ये सब भी वर्ड्स हैं। मान लो ये लिखना है ना, फाइ एक्स इक्वल्स टू जो भी आपको लिखना है। अभी CDF है, मतलब ये कैपिटल फाइ है ना। तो स्मॉल फाइ और कैपिटल फाइ दोनों होता है। इसमें है क्या, इसमें नहीं, इसमें नहीं है। बट इफ यू वांट टू यूज अ कैपिटल फाइ तो आप ऐसे करते हो, मान लो 0.0, ये तो जो भी आया, लेट मी गिव यू दिस थिंग, कैपिटल P लिखते हैं। तो देखो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, देख रहे हो, इन दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है। दिस इज PDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, दिस इज CDF ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल, कैपिटल फाइ। तो कैपिटल फाइ के लिए यूज कैपिटल P, अगेन आई शो यू, कैपिटल PHI, एंड स्मॉल के लिए यू यूज स्मॉल PHI, ठीक है। ग्रीक लेटर्स है, स्मॉल फाइ कैपिटल फाइ, एंड ये हो गया आपका इक्वेशन नोटेशन फॉर्म में। थीटा के लिए भी अगेन, सॉरी, जस्ट टाइप थीटा, थीटा आ जाएगा, ठीक है। दिस इज अगेन इजी, आप कर सकते हो ये वाला खुद से, है ना। तो ये हो गए। नाउ कमिंग टू CM1 रिलेटेड इक्वेशंस। CM1 रिलेटेड इक्वेशंस आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा टू यूज इक्वेशन एडिटर, व्हाई आई टेल यू। आपको सब कुछ नहीं मिलेगा, जैसे ड्यू फंक्शंस जो है ना, एन्युटी ड्यू आपको मिल जाएगा। आपको एन्युटी ड्यू मिल सकता है लाइक दिस वन, ठीक है, डबल डॉट ऑल्ट इक्वल्स टू, मान लो आपको ऐसा कुछ चाहिए। सो ए आई थिंक DD डॉट करने से आता है, DD डॉट स्पेस स्पेस, तो ये एन्युटी ड्यू वाला चीज आ गया। अंडरस्कोर मान लो x
tilt symbol is this pipe symbol, sorry, pipe symbol is above the enter button. एंटर बटन के ऊपर है स्पेस। अच्छा, ये पूरा चीज ब्रैकेट में जाएगा आई गेस, फिर ये चला जाएगा नीचे। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई बट ब्रैकेट क्यों आ रहा है। फिर से मैं दिखा देती हूँ। ए दीदी डॉट मैंने स्पेस पहले दे दिया ना, इसीलिए ऐसा हो गया। स्पेस पहले शायद देने से हुआ, ब्रैकेट देना पड़ेगा। बट ब्रैकेट एक्चुअल में होना नहीं चाहिए। ठीक है, I would recommend all the CM1 students to not use equation editor for annuity functions, क्योंकि खाली annuity due के लिए है और कोई चीज के लिए आप नहीं यूज कर सकते हो। जैसे आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ यूजिंग इट। ए ड्यू एक्सएन समझ में आ रहा है पूरा चीज की क्या है, एंड देन द इक्वेशन। यहाँ पे अगर आप आओगे, यहाँ पे भी सारे नोटेशंस देख लो, आईपी डीपी डेल्टा, इट्स वेरी मच अंडरस्टैंडेबल। एस एन, एक चीज याद रखना, जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं दैट शुड गो विद इन ग्रेटर देन एंड लेस देन ब्रैकेट्स। तो ये जो एस एन है, मान लो यहाँ पे भी इट शुड हैव बीन लाइक दिस, मतलब ये नोटेशन के फॉर्म में नहीं ऑब्वियसली, बट अगर ये नोटेशन के फॉर्म में होता सो it should have been a due, है ना। अभी कैपिटलाइज हो गया, कंट्रोल जेड कर दिया मैंने। आप वो वाला प्रूफिंग से ऑफ कर दोगे तो कैपिटलाइज भी नहीं होगा, मैंने ऑफ नहीं किया था। सी, जब भी आप ब्रैकेट्स में देते हो ये वाला ब्रैकेट, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आप नंबर ऑफ ईयर्स बता रहे हो। कौन बोल सकते हैं कि ये नहीं समझ में आ रहा है। ए ड्यू एजेस एक्स एन, अब आप ये जॉइंट लाइफ के लिए भी कर सकते हो, वेरी इजी। सारे नोटेशंस है देखो। ए बार, अब ए बार भी हम इक्वेशन एडिटर में कर सकते हैं वैसे तो, बट आप ये नंबर ऑफ ईयर्स कैसे दिखाओगे, थोड़ा ट्रिकी है ना। तो इससे अच्छा ये यूज करो, ए बार एन, ए पी एन, ए पी एन नोटेशन। अगेन देखो, एल वाई बाय एल एक्स, डी वाई बाय, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे बट ठीक है, डी एक्स बाय एल वाई, के पी एक्स एकदम सिंपली लिखो, कुछ भी दिक्कत नहीं। के पी एक्स एम क्यू एक्स, समझ में आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, कोई भी इशू नहीं है। अगर आपको कैपिटल पी यूज करना है यू कैन, बट आई वुड रिकमेंड यही करो, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल क्यू मत यूज करना बिकॉज दैट लुक्स वेरी बैड, वो नहीं है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आपको सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सब सुपरस्क्रिप्ट यूज करना है, तब वो चीज फिर भी कर सकते हो। कंट्रोल शिफ्ट माइनस एम, कंट्रोल शिफ्ट माइनस क्यू, कंट्रोल शिफ्ट माइनस एक्स, कंट्रोल शिफ्ट माइनस, जो भी फिर आपको लिखना है ये आप कर सकते हो, बट इसमें अगेन टाइम ज्यादा लग रहा है। सो डायरेक्टली यूज दिस, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, deferred probabilities, joint life probabilities, ADU XN जो भी मैंने दिखाया, ADU XY, joint again, this is also joint। ठीक है, देख लो ये वाला ADU XY, deferred annuity, ये है। अब ये वाला अश्योरेंस फैक्टर्स में आपको थोड़ा केयरफुल रहना होगा, आप कैपिटल ए नहीं लिख सकते। जैसे जैसे ये क्या हो गया, ये आपका एंडाउमेंट है ना, एंडाउमेंट अश्योरेंस है। तो एंडाउमेंट अश्योरेंस में आप मान लो ऐसे लिखते हो, ठीक है।
दिस इज अंडरस्टैंडेबल, नो प्रॉब्लम। बट टर्म एश्योरेंस के लिए क्या करोगे? टर्म एश्योरेंस के लिए तो एक्स के ऊपर एक लाइन रहता है ना, तो वो लाइन कैसे दोगे? तो आप यहाँ पे टीए लिख दोगे, टर्म एश्योरेंस। प्योर एंडोमेंट के लिए क्या करेंगे? प्योर एंडोमेंट के लिए एन के ऊपर लाइन रहता है, तो प्योर एंडोमेंट। सिलेक्ट मोडालिटी दिखाना है, देखो अभी जो इमोजी में चेंज हुआ, इसको भी आप प्रूफिंग पे जाके हटा सकते हो कि वो नहीं चेंज हो। प्योर एंडोमेंट, ऑटो करेक्ट वाला फीचर ही हटा दो पूरा, प्रूफिंग में जाओ एंड पूरा ऑटो करेक्ट का ऑप्शन ही हटा दो। मेरे को चाहिए ही नहीं कुछ भी ऑटो करेक्ट, सब हटा दो, सब हटा दो, ये सब हटा दो, ये रिप्लेस रिप्लेस सब हटा दो, क्योंकि अपने आप इमोजीज बन जाएंगे, देख रहे हो? इसमें अपने आप इमोजीज बन जाते हैं रिप्लेस में। सब हटा दो, ये सब हटा दो, कुछ भी नहीं करना मुझे, तो होगा ही नहीं वो रिप्लेस। सब हटा दो। ये टर्म एश्योरेंस, प्योर एंडोमेंट, एंडोमेंट एश्योरेंस, ये तीनों हो गया। होल लाइफ, होल लाइफ तो इजी है, ए एक्स होता है खाली, एन होता ही नहीं है। ये हो गया ए बार, ये बट क्या है? एंडोमेंट एश्योरेंस एंड कंटिन्यूअस एंडोमेंट एश्योरेंस, तो ई ए बार, ई ए इज फॉर एंडोमेंट एश्योरेंस, टर्म एश्योरेंस, प्योर एंडोमेंट। आई थिंक आई यूज्ड द रॉन्ग ब्रैकेट, आई शुड हैव यूज्ड दिस। ठीक है, select life, simple, you don't have to put these lines। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग एश्योरेंस फैक्टर, बट एक्स के ऊपर लाइन है तो ये इंक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस फैक्टर है, तो देखो आई टी ए, आई टी ए फॉर टर्म एश्योरेंस। ठीक है, ऑल द सीएमएन स्टूडेंट्स, इसके लिए आप नहीं यूज करोगे इक्वेशन एडिटर, आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट इट। मैम व्हाट्स द नोटेशन फॉर गारंटीड एन्युटी? there is as there is bar above x and n together, बार वर्ड यूज कर लो, बार वर्ड यूज कर लो, ए कोलन एक्स कोलन एन बार, यूज द वर्ड बार। ठीक है, related to annuities we have one complete class which I'll be uploading it and it's already uploaded only, तो आप वो रेफर करोगे, उसमें पूरा एन्युटीज का डिस्कशन है in details। Now while solving annuities do we need to write the whole formula? Why do you have to write the whole formula, Tanisha Bed? बस आप खाली ए डी यू एन लिखोगे, आपको फॉर्मूला क्यों लिखना है? जब फॉर्मूला लिखना होगा तब लिखोगे, जब सॉल्व करना होगा। मतलब मुझे समझ नहीं, आई डिड नॉट गेट योर क्वेश्चन। जब लिखना होगा तब लिखेंगे, जब उसको सॉल्व करो। बट जब आपको खाली नोटेशन यूज करना है दैट ए डी यू एन इक्वल्स टू कुछ दिया हुआ वैल्यू, तो क्यों आप फॉर्मूला लिखोगे? डायरेक्टली वैल्यूज अगर दिए हुए हैं या टेबल बुक से निकाल रहे हो तो लिखते हैं ना, बट अगर आप डिराइव कर रहे हो तब तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, जैसे आप कॉपी में करते हो पेन पेपर पे। ठीक है, सो दीज आर योर नोटेशन। नेक्स्ट क्लास आई टेक ऑल, जो भी आपको और कुछ डाउट्स होंगे वो मैं लूंगी, एंड उसके अलावा हम एक्सेल से कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं वो मैं आप लोग को दिखा दूंगी, मे बी आर से वर्ड में भी दिखा दूंगी मैं। दीज आर द शॉर्टकट्स which we have been using। सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट गलत है, कंट्रोल शिफ्ट माइनस शिफ्ट प्लस। ठीक है, एंड यस दैट्स इट, ये मैंने डिस्कस किया था लास्ट क्लास। ये आप रीड कर सकते हो, इसमें कुछ बहुत एक्स्ट्रा विज्ञान नहीं है।
ठीक है मैम, कैन यू शेयर? मैंने बोला ना पीडीएफ ग्रुप में नहीं जाएगा, पीडीएफ में बैकएंड पे आपके उस पे डालूंगी, सॉफ्ट कॉपी वाले सेक्शन पे वेबसाइट पे, ठीक है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर डाउनलोड नहीं कर पाओगे तो मैं फिर आपको शेयर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। आई जस्ट आस्क द टीम एंड आई डू इट बाय टुडे ओनली, अभी मैं कर दूंगी थोड़ी देर में। मैम हाउ कैन वी राइट एक्स बार यूजिंग इक्वेशन एडिटर? यूजिंग इक्वेशन एडिटर एक्स बार अभी मैंने दिखाया था स्टार्टिंग में ही, आई थिंक तुमने मिस किया। कहाँ गया? नहीं, एक्स बार, ठीक है, ठीक है, बी ए आर। राइट, ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में आई शो यू एक्सेल से वर्ड में कैसे करना है टेबल्स, लाइक यू हैव प्रॉफिट टेस्टिंग टेबल्स इन CM1, CS1 में यू आर मेकिंग कंटिजेंसी टेबल्स एंड हाइपोथेसिस में आप यूज करते हो, अनोवा एंड ऑल में भी यूज करते हो, तो वहाँ एंड और मैं आर प्रोग्रामिंग से वर्ड में भी दिखा सकती हूँ आपको, बट अगेन उसका भी मे बी आई कैन टेक अनदर क्लास, या फिर वो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। एंड जो भी डाउट्स होगा आई टेक, देर आर अ फ्यू वीडियोज स्पेसिफिक टू पेपर्स, लाइक CM1 में प्रॉफिट टेस्टिंग का, यूलिप का, एनुइटीज का, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये सब का स्पेसिफिक वीडियोज है, तो आपको वो कंप्लीट करना है। मैं ग्रुप में भी भेज दूंगी, आपके बैकएंड पे डला हुआ है, मतलब आपके वीडियो ब्राउजर पे डला हुआ है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। इन IFA exam can we use integration function on calculator? No dear, Rasila, you cannot do that because otherwise कैसे समझ में आएगा एग्जामिनर को कि आपने देखो अभी क्योंकि प्लेजरिज्म वाला चीज थोड़ा इशू हल्का कम हुआ है, बट आपको स्टेप्स तो दिखाने हैं ना डियर। मार्क्स किसका मिल रहा है फिर? फाइनल आंसर का थोड़ी है, फिर तो MCQ पेपर हो जाता हमारा। मैम टाइपिंग वीडियोस आर इन विच फोल्डर? इट्स देयर इन योर दिस थिंग, जहां आपको बाकी वीडियोस मिलते हैं ना उधर पे ही है। अगर नहीं होना चाहिए ना, टाइपिंग का एक अलग से फोल्डर है रजत, आपके कंटेंट ब्राउजर में जो आपका वीडियो प्लेयर है उसमें एक अलग से ही फोल्डर बना हुआ है टाइपिंग का। अगर नहीं मिलेगा, स्टिल इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट, देन गेट इन टच विद द टीम, दे विल गाइड यू, ठीक है, या फिर आप ग्रुप में लिखो, वील लेट यू नो, ग्रुप में यू कैन ड्रॉप दिस डाउट, राइट? द वीडियो द फाइल आई शेयर, Jasmine, you have to go to the soft copy section. You will get it. आपकी वेबसाइट पे आप लॉग इन करते हो तो सॉफ्ट कॉपी सेक्शन में, ठीक है। अगर वहां से नहीं डाउनलोड हो पाए तो मैं आपको अलग से दे दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं देखती हूँ, मैं बात करती हूँ टीम से कैसे करना होता है, राइट? So get ready with your doubts. Mostly I'll keep the class tomorrow only and we'll finish typing. Maybe again then I'll keep a class next week और कुछ doubts build up होंगे तो कल मैं और ये सब चीज पे बिल्ड करके टुमारो वाली क्लास। हाँ मंथन, टेन। Oh, ma'am, this is just a personal request. If possible, can we keep the class? योर वॉइस इज गेटिंग कट। इफ पॉसिबल द क्लास कैन, टाइप कर दो यार, नहीं सुन रहा। मैम डिजाइन दिस Hello. PDF। भाई ये PDF मैंने बनाया श्रीकांति, कोई आपको नहीं प्रोवाइड करेगा। हाँ मंथन, टाइप कर दो ना, आपका आवाज कट Ma'am, रहा was है। I audible last time? या लास्ट टाइम यू वर ऑडिबल, आई आंसर्ड योर क्वेरी ना। क्लास टाइमिंग रिलेटेड कुछ है, Hello, लिखो am I एक बार। audible? हम्म। I was just having one personal request कि will it be possible कि कल भी हम क्लास इसी टाइम में रखें? हाँ, अब मैं इसी टाइम पे रखूंगी क्योंकि मैंने देख लिया है कि मैं किसी भी टाइम पे रखूं, जिनको ज्वाइन करना है वो करेगा। आई विल कीप इट एट दिस टाइम ओनली, डोंट वरी, ठीक है। Yes, ma'am. Thank you so much because afternoon it becomes very hectic for me. Thank you so much, ma'am. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो कल ये सब चीजें मैं कराऊंगी और डाउट्स आए तो लूंगी।
नेक्स्ट वीक एक और क्लास रख लेंगे जस्ट फॉर द डाउट्स, एंड मैं आप लोगों को सब कुछ ग्रुप में डाल दूंगी, डोंट वरी, जस्ट गिव मी टुडेज टाइम। आई वाज नॉट वेल आफ्टर फ्राइडेज क्लास, मतलब फ्राइडेज क्लास में आपको समझ आ रहा होगा कि आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो इसलिए मैंने नहीं कुछ मैंने किया वीकेंड पे, बट आज मैं आपको सब कुछ दे दूंगी, ठीक है। एंड प्लीज गाइज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, one of the biggest reasons of students not clearing exam is not practicing typing and not practicing enough questions. This is not your school anymore कि एक बार प्रैक्टिस दो बार प्रैक्टिस कर लिया चलेगा। यू हैव टू प्रैक्टिस कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली, जितना आप कर पाओ सम सॉल्विंग, एंड जितना टाइपिंग पे कर पाओ, ठीक है। ये मत बोलना एग्जाम के बाद कि आता था बट टाइपिंग स्लो था तो फिनिश नहीं हो पाया। वेरी कॉमन, डोंट डू दिस। श्रीकांत, छोड़ो ना वो सब, वो एग्जाम में नहीं प्रोवाइड करते आपको कुछ भी। जो आईएफओ देता है ना, ये मैं दिखा देती हूँ, आईएफओ हैंडबुक रिलीज करता है, हैंडबुक में ये होता है, 100 लोग 100 बातें बोलेंगे। ये जो है ना, ये मैंने आईएफओ के हैंडबुक से ही लिया है, ये वाला पार्ट, ये वाला, ये जो सारे CM1 वाले नोटेशंस थे ना, ये मैंने वहीं से ले लिया कि कौन कौन इसको वो करे, ये वाला बस। आईएफओ का एक हैंडबुक आता है हर टर्म में, एग्जाम के 1.5 मंथ्स पहले, उसमें वो ये नोटेशंस रहते हैं, वो पहले आजकल रहते कि नहीं पता नहीं। तो सेम है, मतलब आपको क्यों अलग से कुछ भी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपके लिए इनफ है। एंड एग्जाम वाले टाइम पे तो कुछ रहेगा नहीं, पहले से मिलता है मैम, पर कल से तो अगर आपका क्लास मिस होगा, वीडियो विल बी अपलोडेड एंड यू विल सी इट। देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, किसी ना किसी का क्लास मिस होगा ही होगा, ठीक है। सो डोंट वरी, आई कीप वन डाउट सेशंस इन द वीकेंड, तो आपको कुछ भी डाउट है आप तब पूछ सकते हो। आप 1-to-1 मेंटरिंग सेशन बुक कर सकते हो फॉर योर डाउट क्लियरिंग, वीडियो अपलोड हो जाएगा, वीडियो रेफर कर लेना, एंड 1-to-1 मेंटरिंग सेशंस बुक करो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, बाय बाय।